Hello students, we are meeting after a very long break, okay? Hope everybody must be fit and fine at their home. Now, I want to begin JEE lectures. Now, my intention is to take a common lecture of both 11th and 12th. That means the students who have just entered the 12th standard and the students who have already finished 12th and they are going to appear for the JEE main examination. Yes, I wanted to arrange a common lecture for both of these so that I can cover as much as possible. So here I am going to start by integration. But in integration there are two parts, indefinite integration and definite integration. I will go with both the parts. The students who has not learned the definite integration, don't worry about that thing. I will mention where to use which definite or indefinite. At least you can just concentrate on indefinite part. You will understand definite part also, but if you have any idea or problems, that I will just teach you separately also definite integration. But right now I will just begin with first indefinite only. First I will have all the formulas or standard form or different techniques of solving examples of integration. Okay, so I will just concentrate on that thing. First there should be a indefinite integral part, then we will have a definite integral part. I will mention all the theory of both the parts. Okay, then we will begin the examples. At the time also I also take both definite and integral and indefinite, both combined example. The students who has not learned the definite integral, don't worry about that. Right now they can ignore that examples also. Later on, when I will explain all these things, at that time you will have idea for this example. Okay, so without wasting time, I am just beginning with a integration. Okay, now yes, here we can have what is integration. Actually, in mathematics, every mathematical operation is a reverse operation. Just like we take the reverse of addition is subtraction. The reverse of multiplication is division. Also, these are the reverse process, reversible process. Okay. So, likewise, integration is also nothing but it's a reverse process of a derivative. Okay, there is a differentiation. Okay. So here the thing is that how to use it, and always we know that the reverse mathematical process requires little bit adjustments. Likewise, addition is very straightforward, addition of two numbers, but subtraction of two numbers, in that we require some adjustments, because from subtracting larger number from a smaller number, in that case we require some borrow, something like that. In addition, we don't have to follow all these rules, but in subtraction we will have to follow all these borrow rules, something like that. Likewise, in multiplication and division, multiplication is a straightforward process. It's comparatively easier. But when you are performing division, at that time you require certain adjustment at some points. That means if the number is larger, or you need to put 0 in the quotient, something like that. Okay, so it has certain rules for division. Okay, it requires, in general we can say it requires some adjustment. So always in the mathematics, when we are performing a reverse operation, at all these times, whenever we are performing a reverse operation, at that time we need to apply some adjustments.
So likewise, it also happens in integration also. Differentiation or derivative is very straightforward method. Okay, you can perform derivative of any function, no problem at all. But when it comes to integration, then at that time you require some adjustment. So it's nothing, it's not actually difficult. It requires some common sense, or it requires, in a way, a lot of practice. Okay, then it becomes easier. Okay, so comparative, it's not that much difficult, but it requires some adjustment. So that I will explain you also. Okay, so your first basically integration is what? So if dy dx of g of x is equals to f of x, that means g of x कोई फंक्शन है, उसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को कोई x का ये इस तरह का मिलता है, then integration of f of x dx is equals to g of x plus c. Okay, where c is an arbitrary constant. Okay, so any type of constant. Okay, so these are the things. तो यहाँ पे जब जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन फाइंड करें तो वो क्या है, यहाँ पे f of x का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स f of x किसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे f of x किसका डेरिवेटिव है, g of x का, दैट मीन्स हमको ये थोड़ा उल्टा सोचना है. यहाँ पे f of x का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स किस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो f of x आएगा, वो किस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूंगा जिसका f of x डेरिवेटिव होगा वो फंक्शन, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ f of x. तो रिवर्स प्रोसेस. सो यहाँ पे g of x का डेरिवेटिव f of x है, तो यस f of x का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स f of x वो g of x का डेरिवेटिव है, तो वो चीज है. तो यस किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल, दैट मीन्स ये जो फंक्शन f of x का हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो f of x किसका डेरिवेटिव, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन. इस तरह से होगा. ओके, सो अगेन it's a reverse process, or you are knowing, or you know about this arbitrary constant, because constant term का derivative always zero होगा, तो you can take any arbitrary. फिर आपको कंडीशन के हिसाब से आप c फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑलवेज हमको c लेना है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो. ये कांस्टेंट टर्म कोई भी हो सकता है, 1 लाख 0 व्हाटएवर मे बी, उसका डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो. दैट मींस f of x में ये इंक्लूडेड इसके इंटीग्रेशन में होगा. ओके, और उसका वी नो दैट कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है. तो या मैं एक एग्जांपल दूं, अगर किसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर अगर मेरे को वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा. ओके, दैट मीन्स किसी नंबर पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन का मैं ऑपरेशन करता हूं, उसके बाद वही नंबर मेरे को वापस लाना है तो उसी नंबर से मैं डिवाइड करता हूं, दैट मींस उसी नंबर से मैं डिवीजन का प्रोसेस करता हूं, तो मेरे को जो नंबर ओरिजिनल था वो वापस मिला. सेम लॉजिक यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑल्सो. किसी नंबर को अगर मैं 3 ऐड करता हूं, किसी नंबर में 3 ऐड करता हूं, वापिस मुझे वो ओरिजिनल नंबर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर मैंने ऐड किया वही मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा. यहाँ पे मैं 3 ऐड किया तो मैं 3 सब्सट्रैक्ट करूंगा. तो यस, यहाँ पे ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज ऑल्सो रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. तो किसी नंबर पे अगर मैं ये कोई नंबर लेके सेम नंबर ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन में कर रहा हूं तो वही नंबर मेरे को वापस मिलता है. तो यहाँ पे यही चीज हम फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. किसी फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करता हूं, फिर उसी का ही मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो वही फंक्शन मुझे वापस मिलता है. जैसे मैंने आपको नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लॉजिक समझाया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का लॉजिक समझाया, सेम में यहाँ पे भी ये चीज आप कर सकते हो. दैट मीन्स यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट जो रूल्स आप कह सकते हो. ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेशन. दैट मीन्स ये होगा dy dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन किया, वापस जो आंसर है उसका मैंने डेरिवेटिव किया, यानी दोनों इसका जो इंटीग्रेशन किया उसका रिवर्स प्रोसेस भी किया, तो मुझे ओरिजिनल जो है यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो मुझे वापस मिलेगा। और उसी तरह से हम प्रोसेस उल्टा भी कर सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, उसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस सी वापस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सी लिखने का रीजन यही है कि यहाँ पे सबसे आउटर में इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अगर डेरिवेटिव टर्म में कोई भी अगर एफ ऑफ एक्स में कॉन्स्टेंट टर्म होगा तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो हो जाएगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दैट इज वाई यहाँ पे ये दो चीज में फर्क समझना है। यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन करके बाद में मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स आ रहा है। यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करके उसके बाद में इंटीग्रल अप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे यस ये फंक्शन प्लस में सी लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के साथ कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो मैं डेरिवेटिव करूंगा फर्स्ट, तो वो कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा, तो ओरिजिनल फंक्शन का कांस्टेंट मुझे पता चलेगा नहीं, इसलिए इंटीग्रेशन में ये चीज मैं अप्लाई करता हूं। ये थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं भी हमको यूज करने को आ सकता है। ओके, ये दो चीजें करने के बाद नाउ वी विल मूव द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किस किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास 4 मेथड है। फर्स्ट, इंटीग्रेशन using standard forms. Second, integration using substitution या institution, integration by substitution. Third, integration by parts. And fourth, integration using partial fractions. ब्रॉडली हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इस 4 तरीके से हमको इंटीग्रेशन करना रहता है। नाउ ये जो सारी चीजें हैं ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ये एक्चुअली ये चीजें कुछ नहीं है। किसी भी फंक्शन का को हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही होगा, लेकिन अगर जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उस हिसाब से नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये सारे तरीके हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूशन का, बाय पार्ट्स का, या तो यूजिंग पार्ट्स। ये यूज करके मैं जो फंक्शन है मेरा, जो मेरा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसको मैं फर्स्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट मीन्स जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकूं ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के तरीके, वो लाने के बाद अल्टीमेटली मेरे को यूज तो यही करना है, इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड, integration can always be performed for standard forms only. लेकिन अगर वो स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया तो यही यूज करेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इन तीनों में से कोई एक टेक्निक यूज करके हम उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद वी कैन यूज इंटीग्रेशन। इस तरह से वो रहता है। सो एज आई एक्सप्लेन कि मैथमेटिक्स में जो भी रिवर्स ऑपरेशन रहता है, ओके, रिवर्सिबल जो रिवर्स प्रोसेशन रहता है, उसमें ऑलवेज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके हमको निकल, जैसे अगर ये थोड़ी समझ आ जाती है एडजस्टमेंट की, देन इट बिकम्स इजियर। यस, पहले हम एडिशन बहुत इजीली कर लेते थे, एडिशन के बाद
जब हम सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं तो यह सब्सट्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो सब्सट्रैक्शन बिकम्स इजियर, हम वो इसको इजीली कर पाते हैं। सेम में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन में हम एक्सपर्ट होते हैं, बहुत इजीली सीख जाते हैं और क्विकली हम लर्न भी कर लेते हैं। उसके बाद जब डिवीजन का पार्ट आता है तो डिवीजन में यस स्टार्ट तो हो जाता है, नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन आते हैं तो हमको थोड़े एडजस्टमेंट, उसके रूल्स, वो सारी चीजें हमको समझने पड़ते हैं। फिर उस रूल्स का जैसे जैसे मेरा प्रैक्टिस होता जाता है तो मेरे को उसके ऊपर कमांड आता जाता है, फिर डिवीजन भी मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होता। लाइकवाइज यहाँ पे भी यही चीजें हैं जो मैंने बिगिनिंग में कहा था। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज क्वाइट इजी, हम इजीली वो कर सकते हैं, कोई फंक्शन नहीं कि हम उसके जो बेसिक अलजेब्रिक रूल्स है और उसका जो चेन रूल है, या ये दो चीज का यूज करके और स्टैंडर्ड फॉर्म से इनका यूज करके मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ इजीली। बट व्हेन कम्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ डेरिवेटिव। तो जैसे मैंने आपको एडिशन का रिवर्स प्रोसेस नेगेटिव, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस डिवीजन, इन दोनों को मास्टर करने के लिए मेरे को इस दोनों में मास्टरी पाने के लिए आई नीड सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस करने के बाद वो हम करते भी है और इजी हो भी जाता है। यही चीज यहाँ पे भी करनी है, और यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, और ये जो 3 तरीके हैं दैट इज दिस आर एडजस्टमेंट, वो हमको लर्न करने, वो हमको समझने, एक बार ये सारी चीजें आगे कमान दैट इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, तो इतना फिनिश होने के बाद फर्स्ट में इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मींस फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स करूंगा, फिर एक के बाद एक जो है वो चीज में एक्सप्लेन करूंगा, उसके जो इन जनरल टर्म्स है वो चीज लूंगा, उसके बाद उसके बेस पे जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनते हैं वो चीज हम समझेंगे, और इस तरह से मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, ये चीजें हमको यहाँ पे समझनी है। ओके, सो राइट डाउन दिस थिंग्स, और मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ओके, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वो मैं राइट डाउन करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये पूरा आपको अच्छे से लर्न करना है, वो सारे आपको रिमेम्बर करने हैं। ओके, और यहाँ पे आई थिंक सो इट्स फॉर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वी हैव मोर देन 50 स्टैंडर्ड फॉर्म्स और डिफरेंट तरीके कि इंटीग्रल इस टाइप के होंगे तो इस टाइप का करना चाहिए, वो सारी चीजें होगी, दैट वी विल सी। ओके, मैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिख रहा हूँ। Yes, first integration of x raised to n dx. Yes, x raised to n का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स x raised to n किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, दैट मीन्स ये x raised to n plus 1 अपन n plus 1 plus इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमको ये मिलेगा। यस, इससे हमको थोड़ा उल्टा सोचना है। ओके, ठीक है, और इसके ऊपर से ये चीज भी हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस, ये ध्यान रखना है। ओके, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x इज इक्वल टू log mod x प्लस c। या हमको ये पता है log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, या इस तरह से ये x का डेरिवेटिव 1, इस तरह से ये चीजें हैं। ओके, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट होगा। यस, ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसका डेरिवेटिव है, उसी तरह से e raised to x dx is equals to e raised to x plus c, fourth a raised to x dx is equals to a raised to x upon log a base e plus c। ओके, बिकॉज a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a base e, वो कट हो जाएगा तो मुझे यह आंसर मिलेगा। इस तरह से ये करेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ओके, sin x किसका डेरिवेटिव, एक्चुअली cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो यहाँ पे माइनस cos x प्लस, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होगा। इस तरह से यस,
आपको पता भी है, प्लस इनिशियल पॉइंट पर ये किस तरह से हम आंसर लिख रहे हैं वो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x किसका डेरिवेटिव है तो sin x का, तो यहाँ पे sin x प्लस c g 7, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, ये sec square x किसका डेरिवेटिव तो tan x का, तो यहाँ पे tan x प्लस c 8 cos x square x dx, ओके। cos x square x किसका डेरिवेटिव, एक्चुअली cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x square x, तो यहाँ पे माइनस cot x हम लिखेंगे, माइनस cot x प्लस c 9 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ओके। इसका होगा sec x tan x किसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये sec x का वो डेरिवेटिव है, इस तरह से हम लिख पाएंगे। 10 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, ओके। नाउ आपको ये पता ही चलेगी कि क्या आएंगे। सो दिस आर द थिंग्स, इस तरह से ये चीज हम लिखते हुए जाएंगे, ओके। नाउ यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड करता हूँ, जस्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये चीज होगा 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। हमको सोचना है ये किसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स ऑफ x या तो यस माइनस 1 अपन डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस c, इस तरह से लिख सकते हैं। 12 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, और cot इनवर्स का, तो यहाँ पे cot इनवर्स को माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस cot इनवर्स ऑफ x प्लस c। इसी तरह से 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये sec इनवर्स ऑफ x का है, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव sec इनवर्स, तो sec इनवर्स ऑफ x प्लस c, और सिमिलरली माइनस cosec इनवर्स ऑफ x प्लस c। यस, ये सारे हमने या इन सब के डेरिवेटिव यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इस तरह से हमने लिखे, ये सब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ये चीजें हैं, ओके। नाउ इसमें से कोई भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो उसका किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के यूज के ऊपर से 2-3 बेसिक फंडामेंटल्स बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे ना इसके अलावा और कोई चीज, एक्स के अलावा और कोई चीज आती है या तो और कोई फॉर्म आता है उसमें, यहाँ पे 14 में लिखा हूं, इफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equals to f of x plus c, then integration of f of ax plus b dx is equals to f of ax plus b upon a plus c। यस, इसका यूज किस तरह से, दैट मीन्स मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है f of x dx का, मेरे को स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x की जगह पे, अगर इसमें से कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है लेकिन x की जगह पे ax प्लस b का फॉर्म है, तो ax प्लस b को हम x समझ के उसका जो इंटीग्रेशन है वही लिखेंगे, और नीचे जो x के साथ जो मल्टीप्लायर वो नीचे आएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू किस तरह से, जैसे कि मेरे पास ये चीज है, फिर मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, माइनस cos x प्लस c, ओके। ये मैं एग्जांपल लिया, इसकी जगह पे मेरे पास इस तरह से साइन 2x प्लस dx, ओके।
तो यहाँ पे ये चीज काम आती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये चीज तो लगा x की जगह क्या है, एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे साइन का जो है वही मैं लिखूंगा यहाँ पे cos 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 प्लस x का जो मल्टीप्लायर वो नीचे आएगा। इवन स्टिल एक ज्यादा एग्जांपल में लिखता हूं, मेरे पास e रेज़ टू x dx, तो वो मेरा e रेज़ टू x प्लस c है, x की जगह पे इस तरह से e रेज़ टू 5x माइनस 4 dx इस तरह का होगा। तो ये सेम लॉजिक है, x की जगह पे यहाँ पे 5x माइनस 4, तो फर्स्ट में 5x माइनस 4 का एज इफ x है उस तरह से ही लिख दूंगा, तो यहाँ पे e रेज़ टू 5x माइनस 4 अपन जो x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 5 प्लस इस तरह से होगा। सो इसका यूज ये है, हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ लीनियर फॉर्म होना चाहिए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी फॉर्म होगा, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी फॉर्म होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये मैंने लिखा, इसकी जगह पे ये चीज होगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, तो ये अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे साइन 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर, दैट इज 2x प्लस 3 के लिए है, बाकी ये अप्लाई नहीं होगा। सो इसके लिए नहीं, वो फिर दूसरे तरीके को यूज करने पड़ेंगे। सो बी केयरफुल ये रूल यूज करने में, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं सब फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला का यूज कहाँ पे किस तरह से करना है वो आपको आइडिया आ सकता है, ठीक है। मैं जस्ट डूइंग इट। ये चीज होने के बाद ये जो रूल है, इस रूल का मैं अलग तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता हूं, जैसे इस तरह से 15 इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised to n into f dash x dx is equals to, एक्चुअली ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड से पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज नथिंग बट हम you can also say that it's a change of variable। जनरली कोई एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो वहां पे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके उसको, या तो यू कैन से चेंज ऑफ वेरिएबल का यूज करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने का ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से जब सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे तो एक्सप्रेशन वो वेरिएबल चेंज के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको आप इंटीग्रेशन करके वापस जो सब्स्टिट्यूशन किया है, जो वेरिएबल चेंज उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस रख के आपका आंसर मिल सकता है। यही चीज है इसमें। ओके, यू मस्ट हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स, इसलिए जस्ट मैं ये फॉर्मूला से ही लिख रहा हूं। इस तरह से f of x raised to n into f dash x dx होगा, तो उसका f of x raised to n plus 1 अपन n plus 1 plus c इस तरह से लिख पाएंगे। ये सारे सब्स्टिट्यूशन के हैं। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपन f of x dx। ओके, तो यहाँ पे होगा log mod f of x plus c। इस तरह के एक्सप्रेशन हमको यूज करने हैं, ठीक है। ये आप f of x is equals to t सब्स्टिट्यूशन करके करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। आपको 1 अपन t log mod t that is log mod f of x वो चीज आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप करोगे। ये सब्स्टिट्यूशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सब्स्टिट्यूशन का है। सब्स्टिट्यूशन में वी आर जस्ट इंटरेस्टेड, जैसे वही मैंने जो 4 तरीके दिखाए हैं, जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जिसका ये किसका डेरिवेटिव वो डायरेक्टली हमको पता चल जाए, तो वो चीज हम कर पाते हैं। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन या बाकी के जो तीनों तरीके हैं, वो तीनों तरीके और कुछ नहीं है इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने के। दैट मीन्स जो डायरेक्ट जो फंक्शन है, वो फंक्शन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ एडजस्टमेंट करना रहेगा तो वो एडजस्टमेंट के लिए इन तीनों में से कोई टेक्निक यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन का हम सबसे पहले यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट्स अ चेंज ऑफ वेरिएबल
गिवन वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में चेंज करके, जो एक्सप्रेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन वेरिएबल चेंज करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता है, तो उस तरह से फिर हम उसका करके आगे बढ़ते हैं। ओके, और सब्स्टिट्यूशन लेने में वो चीजें ध्यान रखनी है कि उसमें दो फंक्शन आपको सेपरेट, किसी भी एग्जाम्पल को अगर हमको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो उस एग्जाम्पल में आपको ऑब्जर्व क्या करना है, तो उस एग्जाम्पल में आपको देखना है कि आपको दो फंक्शन सेपरेट करने हैं, उन दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्टेंट है कि नहीं dx के साथ, वो आपको ध्यान रखना है। तो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ एग्जिस्टेंट है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूशन नए वेरिएबल की तरह लेंगे, फिर पूरा चेंज होगा। एग्जाम्पल आपने किए भी होंगे, आपको वो आइडिया भी होगा, और हम भी जब जब करेंगे तो हम ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, ये चीज, अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। ओके, इन एक्सप्रेशन में हम पहले देखेंगे इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ओके, ये होगा log mod sec x plus c, और sec x is equals to 1 upon cos है तो माइनस log of mod cos x plus c, ये चीज लिख सकते हैं। इसमें sin x upon cos x, ये सब्स्टिट्यूशन का तरीका ही है, उस तरह से आप यूज कर सकोगे, या उसके ऊपर से ये जो अब जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ वी विल कंसीडर ऑल दिस एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, लेकिन ये स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव हमको दिखता था, यहाँ पे स्ट्रेट अवे डेरिवेटिव नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें जिसका करना है उसको सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई करूंगा तो ये इस तरह के आएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के बेस पे जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म्स अचीव किए वो मैं अब लिख रहा हूं। ओके, जो मैंने 4 ऑर्डर लिखे उसी हिसाब से मैं सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो हमको यूज करने हैं वो सारे हम यूज एक के बाद एक लिखते जाएंगे। नेक्स्ट 18, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is equals to log mod sin x plus c और माइनस log mod cosec x plus c। इसमें अल्टरनेटिव चीज लिखा हूं क्योंकि दोनों में से कोई भी आपका लिखा हो तो पता चले आपको। नेक्स्ट आपका रहेगा 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is equals to log mod sec x plus 10x plus c और log mod 10 pi by 4 plus x by 2। यस, यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिव वो खास ध्यान रखना है, कई बार आंसर इस टाइप पे होगा, वो आपको जब एग्जाम्पल पूछते हैं तो उस एग्जाम्पल में जो ऑप्शन दिए आंसर, उसके बाद उसके ऊपर से अपन से दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज करना है वो हम डिसाइड करेंगे। सेम में इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx is equals to log mod cosec x minus cot x plus c and और log mod 10x by 2 plus c। ये इस तरह से है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म सब आपको याद रखने, जस्ट आप ठीक से देख लीजिए, ये राइट डाउन कीजिए और मैं आगे लिखा रहा हूं। ओके, यस, हियर वी विल सी दैट 21st, okay, when yes we are talking about substitution, so here one important thing is that's the trigonometric substitutions। Yes, here we will have a separate part of this. And so here trigonometric substitutions are used mainly to remove the radicals। actually radicals that means जो हमारे फ्रैक्शन पावर्स होते हैं एक्सप्रेशन के, उसको रिमूव करने के लिए जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये दो तरीके हैं, टाइप ऑफ इंटीग्रल, अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेने में ध्यान रखना है कि ये चीज लेके मैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो मेरा आइडेंटिटी है, आई हैव 3 मेन आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज आइडेंटिटी यहाँ पे सेट होनी चाहिए, यही चीज करना रहता है।
तो यहाँ पे लेट अस वी जस्ट टेक लाइक दिस, यहाँ पे एक टाइप ऑफ इंटीग्रल यानी कि इस तरह का मैंने जैसे बनाया, रेडिकल्स रिमूव करने के लिए जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज किए जाते हैं। लेट अस इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, ये a square minus x square और 1 upon square root of a square minus x square। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये चीजें हैं, तो इसका इंटीग्रेशन इट इज डिफिकल्ट थिंग। तो ये रेडिकल रिमूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये थी, यहाँ पे a square minus x square, यहाँ पे x is equals to a sin theta और x is equals to a cos theta। तो ये क्या होगा, x is equals to a sin theta में ले रहा हूं, तो ये a square कॉमन 1 minus sin square theta cos square theta और पूरा ये हो जाएगा a cos theta और ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, दोनों में यही चीज होगा। लेकिन यहाँ पे x is equals to a sin theta ये इससे डिसाइड होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेट होनी चाहिए ये चीज। ओके, सेम में यहाँ पे दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, लेट अस से इस तरह से होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, तो यहां पे इस तरह से लेना है कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेट हो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो a tan थीटा। अगर a tan थीटा लूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा। दैट मींस रेडिकल ये जो स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज यस x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं बिकॉज आई हैव टू आइडेंटिटी, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इस तरह से होगा। थर्ड, इसमें ये एक्सप्रेशन हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 1 अपन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब यहां पे मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेट करनी है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यस x इज इक्वल्स टू यस यहां पे sec थीटा। ओके, अगर आप sec थीटा लोगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। इस तरह x इज इक्वल्स टू a sec थीटा और यहां पे ये जो a की वैल्यू हो यहां से आनी चाहिए वो हमको ध्यान रखना है, और x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। यस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशन है इट इज नथिंग बट टू इज योर इंटीग्रेशन। दैट मींस जनरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तभी यूज किए जाते हैं जैसे इन सब में रेडिकल पावर्स रिमूव करने के लिए। एक्सप्रेशन में रेडिकल पावर्स का मेरे को इंटीग्रेशन लेना है तो डायरेक्ट उसका रेडिकल पावर का इंटीग्रेशन मेरे पास कोई है ही नहीं। तो इस तरह से अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, चेंज ऑफ यहाँ पे x की जगह पे थीटा वेरिएबल हो जाएगा, पूरा जो एक्सप्रेशन है वो थीटा में चेंज हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म का और आप डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म से आगे बढ़ पाओगे, इस तरह से आएगा। ओके, ये 3 हुआ। मैं और भी एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे है। यहाँ पे फोर्थ, यस कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रल ये होगा, यहाँ पे इस तरह का हो सकता है a माइनस एक्स अपन a प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो मेरे को इंटीग्रल लेने को आएगा, क्योंकि मेरे को सिंपल एक्सप्रेशन बनना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन जो मेरे को बनाना है, तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। तो x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा लूंगा मैं, तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट इज ये होगा tan थीटा। बट बिकॉज 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, sin अपन cos वो tan हो जाएगा और यहाँ पे cot हो जाएगा। ओके, और रेडिकल रिमूव हो जाएगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। यस, मैं ये कैरी ऑन कर रहा हूं यहाँ पे, सो जस्ट ये जो है वही मैं चीज यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, नाउ इसमें और एक एक्सप्रेशन आएगा इस तरह से, फिफ्थ स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर।
इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो मेरे को सब्स्टिट्यूशन क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलवेज भी रिमेम्बर कि हमको कोई आइडेंटिटी यहाँ पे सेट करनी है कि जिससे मैं ये रिमूव कर सकूं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा और x इज इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कोई एक लोगे तो उसमें क्या होगा, आपको 2a यानी 2a 4a, यहाँ पे 4a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप कर पाओगे। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे इसको a माइनस यहाँ पे x माइनस ए होल स्क्वायर, ओके, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। यस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी, सॉरी ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से आपको करना होगा। तो इस केस में जो अगर ये होगा तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल हो जाएगा, बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लिख सकोगे x माइनस ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एस स्क्वायर कॉमन निकलेगा और आप आगे निकल जाओगे। सो इस तरह से ये चीजें हमको करनी रहेगी, ठीक है। नाउ सेम में अगर इसकी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, तो क्या लेना चाहिए, ओके। तो यहां पे x इज इक्वल टू 2a tan स्क्वायर थीटा। हमको यहाँ पे आइडेंटिटी सेट करनी है, वही चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस माइनस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे x की जगह पे मैं 2a लिखूंगा तो 4a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 4a tan रेज़ टू 4 थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, ये चीज मुझे मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, वो ये रेडिकल रिमूव होगा। आवर इंटेंशन इज दैट ओनली, ये सारी चीजें यूज करके हम को हम बाहर निकलना चाहते हैं। अदरवाइज इस तरह से भी होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये चलेगा, इसका नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां तक करोगे तो चलेगा, इससे एक्स्ट्रा कोई नहीं। इस तरह के एक्सप्रेशन है आपके पास, आप इतना करोगे, बाकी तो सब डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से सेट हो जाएगा। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन का हमने देखो, मैंने 4 तरीका क्या आपको बताया है कि हम 4 तरीके से इंटीग्रेशन फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल, तो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड इंटीग्रल 12-13 थे वो लिख दिए। देन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन के बेसिक 3 मैंने फंडा दिखा है, उसका यूज करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम उसको ला सकते हैं सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। और सब्स्टिट्यूशन में एक ये चीज सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पेसिफिकली इस तरह से रेडिकल्स रिमूव करने के लिए ये चीज यूज की जाती है। अब इसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके इसके ऊपर से भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स बने हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसके बाद में लिख रहा हूं, ओके। मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर से कौन कौन से रिजल्ट हमने प्रूव किए, कौन कौन से रिजल्ट उसके ऊपर से आए, अगर वो हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं एक के बाद एक, तो दैट विल बी बेटर थिंग, ओके। तो इसके ऊपर से मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमने एस्टैब्लिश किए, तो वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल इसके बाद में लिख रहा हूं। 22nd इंटीग्रेशन ऑफ dx upon s square plus x square, that is 1 upon a tan inverse x by a plus c, or minus 1 upon a cot inverse x by a plus c. Yes, dx s square plus x square या x square plus s square ये चीज आएगा। नाउ dx अपन x square minus s square, इसके लिए 1 upon 2a
log mod x minus a x plus a plus c 24th integration of dx upon a square minus x square is equals to 1 upon 2a log mod a plus x upon a minus x plus c। यहाँ पे अगर x माइनस a लिखा है तो भी चलेगा और a माइनस x लिखा है तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। x प्लस a अपन x माइनस a वो चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। यस, इसमें सिर्फ माइनस कॉमन निकल जाएगा और ये एक्सप्रेशन आएगा, तो यस ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। उसके अलावा इंटीग्रेशन dx अपन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, विदाउट स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ है, तो यहाँ पे लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी 26 इंटीग्रेशन ऑफ dx upon square root of x square minus a square, ओके। तो यहाँ पे log mod x square root of x square minus a square plus c 27 यहाँ पे dx square root of a square minus dx is equals to sin inverse x by a plus c और minus cos inverse x by a plus c, इस तरह से होगा। नेक्स्ट 28 यहाँ पे dx अपन mod x square root of x square minus a square, तो 1 upon a sec inverse x by a plus c और minus 1 upon a cosec inverse x by a plus c, ओके। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशन हमने देखे उसका यूज करके ये सारी चीजें हमने एस्टैब्लिश किए हुए, ये सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल फाइंड किए हुए हैं। तो ये यहाँ तक है। नाउ इसके आगे हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, ओके, उसका यूज क्यों करते हैं, इसी तरह से हम कंटिन्यू करें। 29 के बाद वो चीज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन पार्ट्स बेसिकली क्या है, कब इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल एस्टैब्लिश किए वो सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हम लिखेंगे। और इसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रेशन होंगे, तब हमको इंटीग्रेशन को किस तरह से अप्रोच करना है वो भी तरीका हम देखेंगे। फिर देन वी विल बिगिन विद द एग्जांपल। लेकिन ये सारे आपको याद रहने चाहिए। इसमें भी ये चीज है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मींस फर्स्ट वेरिएबल है और सेकंड कांस्टेंट है। जब माइनस साइन आती है तब बहुत ध्यान रखना है, फर्स्ट वेरिएबल उसके बाद कांस्टेंट, यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट उसके बाद वेरिएबल, दोनों का सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट इंटरचेंज होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन डिफरेंट है। ये चीज का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रूट के बगैर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट में जब ये रिवर्सिबल हो रहे हैं कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, तो वो साइन इनवर्स है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में लॉग वाला है, ये ध्यान रखना है। ये जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यहाँ पे मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे मेरा ये इंटेंशन भी रहेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते, कहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी कम से कम मिस्टेक हो, ओके। नेक्स्ट में मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन के बेस पे जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो सारी चीजें मैंने यहाँ तक निपटाई है। इसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स और उसका ऊपर से उसके बेस्ड जो भी स्टैंडर्ड वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है वो देखेंगे और लास्ट में डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप्स के इंटीग्रल देख के हम आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।